Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to teach you a chapter number fourth, that is a truly beautiful mind from the book Behind. And this is the part one of this chapter. So as you all know, in this chapter we will discuss about the Albert Einstein. So he is Albert Einstein. He is one and only Albert Einstein. So this is a short, basically, this is a short biography and short and concise way to understand him in this chapter. And he is such a genius person. He was very intelligent, and his discoveries and theories, they kind of open a new path in science and physics. All right, that is why we consider him as a genius person. ऑल राइट सो बेसिकली ही इज एल्बर्ट आइंस्टीन. यहाँ पे आपको इसका पिक्चर भी गिवन है. ही इज एल्बर्ट आइंस्टीन. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस about him. We will discuss about him, his life, his discoveries, his theories. All right, and we'll see his personal life facts, and we'll see कि basically he is known as genius. Okay, so we will see in this chapter that he is genius as we know him now, or he was an ordinary person like us. All right, or something else. He was something else, or his likes and dislikes, his hobbies, all these things we will see in this chapter. All right, so let's continue. Let's start this chapter. A truly beautiful mind. So before you read is given in this chapter, what do you think what do you think of when you hear the word genius? So what do you think whenever you heard a word genius? Means genius एक ऐसा person होता है, as a human being हम सोचते हैं कि कोई person अगर genius है तो मे बी वो हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, मे बी वो ऑर्डिनरी नहीं होता, राइट? वो एक्स्ट्रॉर्डनरी आप उसे कह सकते हो. जैसे वो हर चीज़ में, मीन्स उसके पास ही हैज़ और शी हैज़ सम सर्टेन क्वालिटीज़ इन इट, कि इंटेलिजेंट हो और आईक्यू लेवल अच्छा हो उसका. इसके अलावा आईक्यू लेवल अच्छा हो, जीके अच्छी हो उसकी. आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप करें तो उसको उसके आंसर्स पता हो, हमेशा गुड मार्क्स स्कोर करता हो इन हर और हिज क्लासरूम. सो ये मतलब आप कह सकते हो ये सिम्टम्स होते हैं एक जीनियस पर्सन के, तो उसको हम जीनियस पर्सन कह सकते हैं. हु इज़ अ जीनियस, ये अभी आप जस्ट मैंने आपको बताया. व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो आप लोग क्या सोचते हो कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जीनियस के पास? सो दैट पर्सन हु इज जीनियस, तो दैट पर्सन शुड बी काइंड. फर्स्ट वो काइंड होना चाहिए, राइट? सेकेंड, he should be kind. He should think positive and think about the betterment of the society, and he should adapt in every situation. हर सिचुएशन वो अडेप्ट करे. सो दीज आर सम certain qualities, okay, we can see in a genius person. All right, so we shall now read about a young German civil servant. So in this chapter we will read about the German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. So अब यहाँ पे ओवरऑल एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि मीन्स दिस इज द एक्चुअली आउटलाइन गिवन है कि लीजन कौन है, या जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके बारे में हमें बताया जा रहा है. तो वो एक जर्मन सिविल सर्वेंट थे, और एक ऐसी तूफान लाए थे ये 100 years अगो इस वर्ल्ड में. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession
four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. So अब ये क्या थे कि कुछ 1905 में when he was 26 years old इन्होंने कुछ four grounded papers कुछ publish किए थे and these are the outlines given की थी और उस आउटलाइन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की थी लाइक लाइट के बारे में ही डिस्कस्ड अबाउट द लाइट and means those paper were about light and were about motions of particles, were about extra dynamics of moving bodies and energy. Alright, इनके बारे में उन्होंने 4 grounded papers published करे थे. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and entire cosmos. So here the word cosmos means universe. अभी कहते हैं कि मे बी उन्होंने मतलब जो साइंटिफिक जर्नल्स थे उनके लिए बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स होंगे जैसे ये भी थे तो उनमें से उन्होंने सिर्फ 4 पेपर्स ही उन्होंने वहाँ पे लिए थे बट उन्होंने जो साइंटिफिक स्टॉर्म लाए थे वो उस टाइम पे इस स्पेस में वो केवल एक स्पेस नहीं था एक टाइम था इट मीन्स वो एंटायर यूनिवर्स में वो लेकर आए थे ऑलराइट एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. अब क्या था दैट इज द मेन रीजन इनका नाम क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया था आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस. दैट वी कैन से कि अगर हम एक जीनियस का सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची या सेम मीनिंग हम देखते हैं तो हम किसको देख सकते हैं आइंस्टीन को देख सकते हैं. ऑलराइट सो 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स. सो अभी आप देखते हैं कि 50 years मीन्स उनकी डेथ के 50 years बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन को जो जीनियस का टैग है वो अभी भी रूल कर रहा है रूल ओवर दिस वर्ल्ड. अभी भी वो उनका टैग है वो कभी गया नहीं है और आई थिंक जब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक हमारी डेथ होगी वो एज इट इज मेंटेन रहेगा. ऑलराइट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The first point is Albert Einstein was born on 14th March 1879. See, इस चैप्टर में कुछ फैक्ट्स गिवन है बिकॉज ये बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टीन की, ये रियल है, ये स्टोरी नहीं है. दैट्स वाई जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल रियल हैं, ऑथेंटिक हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं, ये रिमेंबर रखने. राइट सो ही वॉज बोर्न ऑन 14th March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे जर्मन पर्सन के बारे में पढ़ेंगे. एंड हु इज द जर्मन पर्सन हियर मीन्स एल्बर्ट आइंस्टीन एंड ही लिव्ड इन जर्मन सिटी. एक जर्मन सिटी थी, क्या नाम था उस जर्मन सिटी का, उल्म में ये रहते थे. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टीन. सो हियर द वर्ड डेस्टीन मीन्स फेट, predetermined set of event that has to happen in the future. मीन्स आप कह सकते हो somehow luck कह सकते हो, डेस्टिनी कह सकते हो. तो एक डेस्टिनी ऑफ ग्रेटनेस ऐसा कुछ नहीं था. अभी कह रहे हैं कि ये जो इनकी ग्रेटनेस के बारे में पढ़ते हैं, इनकी जीनियस क्वालिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, ये ऐसा ऑलरेडी पहले से ही फिक्स नहीं था, ये उनकी किस्मत में नहीं था कि पहले से ही डिसाइडेड हो. On the contrary, on the other hand, we will see his mother thought Albert was a freak. So here the word freak means उनकी मदर क्या सोचती, अल्बर्ट क्या है फ्रीक. फ्रीक a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. Means freak means those person who doesn't behave like other person or look like other person, उसे फ्रीक कहते हैं. So his mother thought about him कि अल्बर्ट वो क्या है, वो फ्रीक है. To her his head seems much too large because उसका जो head है वो other means if we compare to other children, his head is too large. All right, so see the second paragraph. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. Means कुछ 2.5 साल के आइंस्टीन होंगे, तब तक वो बिल्कुल नहीं बोलते थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. अब फाइनली जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे. सपोज एल्बर्ट आइंस्टीन खुद का नाम ले रहे हैं, माई नेम इज एल्बर्ट आइंस्टीन,
तो ही टॉक लाइक दिस, माई नेम, लाइक वो कोई भी वर्ड होगा उसको 2 बार बोलते थे. आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन and his playmates called him brother boring. अब here आइंस्टीन डोंट नो कि वो दूसरे चिल्ड्रन के साथ क्या करे, बिकॉज द अदर चिल्ड्रन थॉट कि ही इज टू बोरिंग पर्सन, राइट. उसको इसलिए क्या बोलते थे, बोरिंग, ब्रदर बोरिंग. उनका टैग क्या था, ब्रदर बोरिंग का उनको टैग मिला था. सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ. सो जो ये है एल्बर्ट आइंस्टीन, वो खुद ही खेला करते थे, वो किसी और के साथ नहीं खेलते थे. ऑल राइट. सो मच ऑफ द टाइम मीन्स most of the time he was playing alone. All right. He especially loved mechanical toys. So उनका एक specially love किस पे था, वो mechanical toys को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. अब क्या था, looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, fine, but where are her wheels? अब जैसे ही वो माजा को देखते थे in his newborn sister, वो कहते थे ये तो ठीक है, माजा एक टॉय वो माजा को कंसिडर करते थे एज अ टॉय, तो कहते थे इसके व्हील्स का है. ऑल राइट. So a headmaster once told his father, means the Albert Einstein headmaster told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब उसके फादर ने उनके हेडमास्टर ने, यानी टीचर आप कह सकते हो, उनके प्रिंसिपल ने उनके फादर से एक बार कहा कि वॉट एवर ही चूज इन हिज लाइफ, बट वो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा. ही विल बी नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, मतलब वो किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगी. आइंस्टीन बिगिन लर्निंग टू प्ले द violin at the age of 6. अब he started play the violin कौन सी एज में, at the age of 6, because his mother wanted him to, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी. The later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout the life. अब देखो, here the word amateur means doing something for personal enjoyment rather than as a प्रोफेशन. मीन्स एज अ प्रोफेशन किसी चीज़ को नहीं करना, अपने पैशन के लिए करना. सो वो जो एमेच्योर वायलिनिस्ट बने थे वो अपने पैशन के लिए बने थे, उनको कोई प्रोफेशन नहीं लेना था. मेंटेनिंग दिस स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ, बट इस स्किल को वो थ्रू आउट हिज लाइफ कंसिडर किया बिकॉज ही वॉज गुड एट इट. ऑल राइट. सो अब ये एक तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है. अब इससे पहले यहाँ पे बुक में एक स्टोरी गिवन है. अब बैक में आएंगे, सेकेंड पैराग्राफ के बाद में ये स्टोरी गिवन है, बट बिफोर मैंने सेकेंड और थर्ड आपको पढ़ा दिया, उसके बाद ये स्टोरी देख रही हूँ क्योंकि वो कंटिन्यूटी में हम कर रहे थे. ओके. सो द स्टोरी इज ऑटो न्यूबॉर्न ने ये स्टोरी दी थी. द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, ही वॉज द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन. उन्होंने आइंस्टीन के पे स्टोरी बताई थी दैट ही कैरेक्टराइजेज एज अ लीजेंड, क्योंकि उनको एक लीजेंड कैरेक्टराइज किया जाता है. बट द सीम फेयरली ऑथेंटिक, इट सीम कि ये क्या है, ऑथेंटिक है, रियल है, ऐसा लगता था. अब ये कितनी ऑथेंटिक है वी डोंट नो, बट एल्बर्ट आइंस्टीन तो सही है, रियल पर्सन है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें रियलिस्टिक होगा ही, मीन्स ऑथेंटिसिटी तो मस्ट है ही. As he was a late talker, his parents were worried. अब as we all know कि बहुत जल्दी लेट उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था. His parents always worried about him. So at last at the supper table. So here the word supper means dinner. So dinner table पर one night he broke his silence to say. एंड वन नाइट उन्होंने अपनी साइलेंस को ब्रोक किया एंड ही से द सूप इज टू हॉट. क्या सेंटेंस उन्होंने बोला कि सूप क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट है. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. अब उसके पेरेंट्स ने पूछा कि इससे पहले उन्होंने कभी वर्ड्स क्यों नहीं बोले, मतलब यही क्यों बोला वर्ड. अल्बर्ट रिप्लाइड, उन्होंने बहुत ही फर्मली रिप्लाइड किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. मीन्स अब तक सब कुछ क्या था, ऑर्डर में था, उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. आज कुछ उसे डिफरेंट लगा, दैट्स व्हाई ही स्पीक. ऑल राइट. सो कम टू द fourth paragraph. But Albert Einstein was not a bad pupil. So here the word pupil means student. Okay, ये people नहीं है कि लोग आप इसको कंसिडर करें, ये pupil है, pupil means student. So Albert Einstein ऐसा नहीं था एक bad student थे, he was a very good student. He went to high school in Munich
where Einstein family had moved when he was 15 months old. जब वो 15 months old थे तब उनकी फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गई थी, म्यूनिच में शिफ्ट हो गई थी, and scored good marks in almost every subject, and he was scoring a very good mark in every subject. So Einstein hated the school regimentation. So here the word regimentation means ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. एक एक्सट्रीम लेवल पे डिसिप्लिन होना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ऑलराइट, सो एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर, और इसी रीजन से उनका क्लैश हमेशा उनके टीचर से रहता था. एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stilled means unable to breathe or suffocated there that he left the school for good. उन्होंने क्या सोचा कि ये बेटर है कि अब वो क्या कर दें, स्कूल को छोड़ दें, क्योंकि ही वॉज मच सफोकेटेड देयर. उनको बहुत सफोकेशन फील होता था. ही कांट प्रॉपरली ब्रीथ देयर. ब्रीथ मीन्स उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लगता था. ऑल राइट. So, the previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. Means जब उन्हें लगा कि उन्हें he left the school, he want, जब उन्हें फीलिंग आई कि उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए, that time उसके एक प्रीवियस ईयर मतलब 1 साल पहले उनके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, मिलान में चले गए थे, और उन्हें कहाँ छोड़ के गए थे, विद देयर रिलेटिव्स. तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी देर के डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी. अब वो क्या बोले कि काफ़ी डिस्कशन हुआ उनके पेरेंट्स के साथ, और उन्होंने एट लास्ट ये कहा कि वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे जर्मनी भी, क्योंकि वो बिलोंग कहाँ से, ही वॉज बिलोंग टू जर्मनी, दैट्स वाई वहाँ पे जर्मनी बोल जाती है. तो उनको अब कहाँ पढ़ना है, स्विट्जरलैंड में पढ़ना है, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच. अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिबरल है, इफ वी कंपेयर अबाउट कंपैरेटिवली देखें म्यूनिच से, बिकॉज लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, क्योंकि वहाँ पे दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट होती थी और उनको अंडरस्टैंड करते थे. ऑल राइट. सो और थोड़ा लिबरल, दैट्स वाई उन्होंने उसको क्या कहा कि लिबरल है, वहाँ पे लिबर्टी मिलेगी टू स्पीक. ऑल राइट. सफोकेशन फील नहीं होगा. दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू लेफ्ट हिज म्यूनिच स्कूल. ऑल राइट. सो हियर आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.